Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will learn about part 2 of recording of transaction chapter. So basically इसके पहले के चैप्टर में हमने पढ़ा था regarding cash book with single column, cash book with two columns, then about petty cash book. So now in this chapter we will learn about purchase book, sales book, purchase return book, sales return book and journal proper. So basically इसमें we will learn about the formats of these books, then the points to be considered while preparing these books, and then we will solve the sums regarding these books. So आज हम start करेंगे purchases बुक से. सो बेसिकली आई हैव प्रिपेयर्ड द फॉर्मेट ऑफ परचेजेस बुक जिसमें वी स्टार्ट विथ द डेट ऑफ द परचेज दैट वी मेक, देन द पर्टिकुलर्स, मतलब यहाँ पे आएगा सेलर का नेम, जो भी पार्टी का नेम है दैट विल कम अंडर पर्टिकुलर्स. देन द इनवॉइस नंबर, मतलब कि जो बिल नंबर या इनवॉइस रहता है उसका नंबर. देन LF मतलब कि लेजर फोलियो, जब हम ये परचेस बुक्स की डिटेल्स लेजर में डालेंगे तो जो लेजर में हम पेज नंबर पे डालेंगे दैट नंबर विल कम हियर. देन डिटेल्स रिगार्डिंग द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स. देन कॉस्ट, द नेट अमाउंट, लाइक जो डिस्काउंट और वो सब डिडक्ट करके जो प्राइस पे हमें गुड्स पड़ते हैं, जो कॉस्ट पे हमें गुड्स मिलते हैं, दैट वी विल राइट here. Then all the other expenses such as freight charge और cartage और transportation charge, packaging charge, वो सब आएगा यहाँ पे. At the end total of all the price plus all the expenses, तो यहाँ पे जो final amount आएगा that will come under the total column. So this is the format of purchases book. Now there are few points to be kept in mind while we are preparing purchase book. उसमें से सबसे पहला है that only credit purchases are recorded in our purchase book. कभी भी हम कैश परचेज इसमें रिकॉर्ड नहीं करते हैं. Only credit purchases will be recorded. Second important point is credit purchases of the goods that we use in manufacturing our product that will only be considered here. मतलब कि हम कोई भी अगर हमारी ऑफिस के लिए कुछ हमने फर्नीचर खरीदा या नया कंप्यूटर खरीदा, कोई भी एसेट्स लिए, द एसेट्स विल नॉट बी रिकॉर्डेड हियर इवन इफ इट इज़ क्रेडिट परचेज, बट वो यहाँ पे नहीं आएंगे. जो भी हम रॉ मटेरियल्स ले रहे हैं या गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स ले रहे हैं हमारा एक फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए जो हम आगे कस्टमर को बेचेंगे, उसके लिए हम जो भी रॉ मटेरियल्स या ले रहे हैं दैट विल ओनली बी रिकॉर्डेड इन द परचेजेस बुक. जो भी एसेट्स का परचेस होगा वो इसमें नहीं आएगा, दैट विल गो इन जर्नल प्रॉपर. Then the third point to be considered is यहाँ पे हमें जो भी हम अमाउंट लिखेंगे that amount will be written after deducting the trade discount, because हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है that trade discount is never recorded in the books of account. तो हमारे जो भी गुड्स की प्राइस होगी उसमें से हम ट्रेड डिस्काउंट को डिडक्ट करके बाद में हम यहाँ पे उसकी कॉस्ट प्राइस लिखेंगे. So these are the few points to be considered while making the purchase book. Now let's start with an example from our T.S. Grewal book. So in my book, this is the 2020 edition. In this we have illustration 1. In the purchases book, the illustration is of Messrs. Narayan and Company. अगर आपके पास नहीं है तो भी कोई बात नहीं, I will read the question first. So basically the question says that from the following information of Messrs. Narayan and Company, Delhi, prepare the purchases book for the month of February 2020. मतलब कि हमें परचेसेस बुक बनाना है कौन से मंथ के लिए, फेब 2020. सो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ईयर लिख देंगे. देन ऑन 1st Feb we purchased from Messrs. Brown and Company, Kolkata. We purchased 5 gross pencils at the rate of
1200 rupees per gross. Then we purchased 2 dozen registers at the rate 500 rupees per dozen, and we got a trade discount of 10%. So let's start recording each and everything, so we will understand कि कैसे आगे डिस्काउंट एंड ऑल करना है. सो सबसे पहले ऑन दी Feb 1st सबसे पहला आएगा यहाँ पे सेलर का नाम, जिससे हमने गुड्स ली है उसका नाम, मेसर्स ब्राउन एंड कंपनी. उससे हमने क्या लिया, वो जो भी गुड्स हम लेंगे उसकी भी डिटेल्स पर्टिकुलर्स के कॉलम में ही हमें डालनी है. सो वी बॉट 5 ग्रॉस पेंसिल्स at the rate 1200 per gross. Then we bought 2 dozen registers at the rate 500 per डज़न. इनवॉइस नंबर क्वेश्चन में नहीं दिया है, LF नंबर भी दिया हुआ नहीं है. सो अब यहाँ पे हम पहले डिटेल्स में लिखेंगे हमारी प्राइस 1200 इंटू 5, दैट विल कम टू 6000 रुपीज़. फिर इसमें हम लिखेंगे 500 इंटू 2, दैट इज़ 1000 रुपीज़. फिर हम करेंगे लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%. सो ये जो हमारा टोटल आया 7000, उसमें से हम लेस करेंगे 7000 का 10%, दैट विल बी 700 रुपीज़. तो ये जो आएगा यहाँ पे कॉस्ट भी कुछ और नहीं है, फ्राइट चार्ज भी कुछ नहीं है. सो बेसिकली फाइनल अमाउंट हमारा जाएगा बाहर. देन नेक्स्ट वी हैव ऑन 4th of February we purchased from the paper company Delhi. We purchased 8 reams of white paper at the rate 500 rupees per ream. Then we purchased 10 reams of ruled paper at the rate 600 rupees per ream, and the trade discount is 10%. तो सिमिलरली जैसे पहले किया सेम वैसे ही हम ये भी रिकॉर्ड कर देंगे. डेट इज Feb 4 from the paper company. We purchased 8 reams at the rate 500 per ream. So this will come to 8 5s are 4000. Then we purchased 10 reams at the rate 600 per ream. So this will be 6000 rupees. पहले इसका टोटल लिख देते हैं यहाँ पे ही. This will be 10,000. Now we will less trade discount at the rate 10%. So this will be 1000. Final amount will be written in the outer column, that is 9000 rupees. Then on 5th February we purchased
80 Reynolds pens at the rate rupees 5 each from Messrs Verma Brothers. So basically this will be recorded in the same manner. On Feb 5th सबसे पहले सेलर का नेम, $80 pen at the rate rupees 5 each. So this will come to rupees 400. इसमें क्योंकि कुछ भी डिस्काउंट और नहीं है, डायरेक्टली वी विल राइट दी फाइनल अमाउंट इन दी आउटर कॉलम. ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा. बाद में ऑन द लास्ट डेट ऑफ द मंथ वी विल राइट दी टोटल ऑफ द आउटर कॉलम. मतलब ये जो भी होगा वो हमारे परचेस अकाउंट में डेबिट होगा on the last date, that is 29th February. Purchases account debit amount will be total of this. So this will come to 15,700. So after making the purchases book, then we need to pass the journal entry of the same, and we also need to post in the ledger book. So now we will learn about the same example, how to do the journal and ledger. So basically first we need to prepare a table to know that what amount will be debited and what amount will be credited. So this is the format of that table. उसमें सबसे पहले आएगा सप्लायर्स नेम, मतलब कि जिससे हमने गुड्स खरीदे हैं वो पार्टी का नेम. देन वी हैव कॉस्ट, then we have expenses like freight, cartage, and then at the end we have total. So basically हमारा जो एग्जाम्पल था उसमें हमने सबसे पहले लिया था मेसर्स ब्राउन एंड कंपनी से. ब्राउन एंड कंपनी, उनसे हमने लिया था 6,300 रुपीज़ का सामान. कुछ भी एक्सपेंसेस नहीं थे. सो फाइनल अमाउंट विल बी सेम. देन हमने लिया था द पेपर कंपनी दिल्ली से, उनसे हमने सामान लिया था 9,000 रुपीज़ का. कुछ भी एक्सपेंसेस नहीं थे. सो सेम अमाउंट विल कम इनटू टोटल कॉलम. एंड लास्ट में हमने लिया था मेसर्स वर्मा ब्रदर्स से, उनसे हमने लिया था 400 रुपीज़ का. अगेन यहाँ पे भी कुछ एक्सपेंसेस नहीं थे. नाउ वी विल डू दी टोटल ऑफ this column, all the columns. 15,700, यहाँ पे कुछ नहीं, 15,700. सो बेसिकली जो हमारा परचेज का अमाउंट है, ये जो इसका टोटल आया कॉस्ट का, दिस विल बी डेबिटेड. एंड जो भी हमारा सप्लायर्स के अकाउंट का टोटल आया है, दैट इज़ द लास्ट कॉलम, दिस विल बी क्रेडिटेड. इंडिविजुअली क्रेडिट होगा सब सप्लायर्स के नाम पे, और इन केस कुछ एक्सपेंसेस रहते तो वो भी हम डेबिट ही करते. ठीक है. सो नाउ वी विल पास अ जर्नल एंट्री ऑफ द सेम. तो इसमें आएगा परचेसेस
account debit this amount 15,700 to। अब हम क्रेडिट में ये डायरेक्ट टोटल नहीं लिखेंगे, ये सब जो सप्लायर्स के इंडिविजुअल अमाउंट है दैट वी विल रिकॉर्ड। सो फर्स्ट इज टू मेसर्स ब्राउन एंड कंपनी, अमाउंट इज 6,300। then we have to the paper company, amount is 9,000 and last to Messrs Verma Brothers 400 rupees. So this is how we prepare a table for debit and credit amount and then we pass the journal entry। जो भी हमारा कॉस्ट का टोटल होगा और एक्सपेंसेस का टोटल होगा दैट विल बी डेबिटेड एंड जो फाइनल टोटल आएगा वो अमाउंट क्रेडिट होगा लेकिन इंडिविजुअल सप्लायर्स के नाम से। नाउ वी विल प्रिपेयर द इंडिविजुअल लेजर अकाउंट्स एंड परचेसेस अकाउंट in the ledger book। So this I have prepared the T-shape accounts। आपको आपकी बुक में प्रॉपर लेजर का फॉर्मेट ही बनाना है since I don't have more space, so that's why I have prepared T-shape accounts। So basically हमने हमारे सप्लायर्स के अकाउंट्स बनाने हैं और लास्ट में परचेसेस अकाउंट का लेजर बनाना है। So basically सबसे पहले हमारा जो सप्लायर है वो ब्राउन एंड कंपनी है। सो उसके क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे सबसे पहले तो बाय परचेसेस अकाउंट, बाय परचेसेस अकाउंट। उनसे हमने सामान लिया था 6,300 का। देन पेपर कंपनी से हमने सामान लिया था 9,000 का एंड मेसर्स वर्मा से लिया था 400 रुपीज़ का। देन in the purchases account on the debit side we will write to sundries as per purchases book for Feb 2020। जो भी हमारा टोटल था दैट वाज 15,700। सो दिस इज द फुल सम ऑफ आर परचेसेस बुक, जिसमें हमने पहले परचेज बुक बनाया, देन वी मेड द जर्नल एंट्रीज एंड देन वी प्रिपेयर्ड द इंडिविजुअल लेजर अकाउंट। सो दिस इज हाउ वी डू द परचेसेस बुक।